My precious brothers and sisters, I greet each one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, and especially being the 2nd January, I wish you all a very happy new year and may God speak to you and bless you. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच में आज जबकि 2 जनवरी का दिन है, नया साल है, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करे। मेरा आपको अभिवादन। Today we are going to meditate Isaiah 58 verse 11. आज हम मनन करने वाले हैं यशायाह अध्याय 58 वचन 11 से। It says, "The Lord will guide you continually and satisfy your soul in drought and strengthen your bones. You shall be like a watered garden and like a spring of water whose waters do not fail." यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। David believed that and he prayed a small prayer that we see in Psalm 31 verse 3. और दाऊद ने इस पर विश्वास किया और उसने एक छोटी सी प्रार्थना की जिसे हम भजन संहिता 31 वचन 3 में देखते हैं। He says, "Father, you are my rock and my fortress. Therefore, for your name's sake, lead me and guide me." उसने कहा, पिता, तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। My friends, this is a small prayer. मेरे दोस्तों, ये तो एक छोटी सी प्रार्थना है। But being in the beginning of the year, let us pray every day, every single moment, this little prayer. और जबकि ये नए साल की शुरुआत है, इसलिए आइए हर एक दिन, हर समय ये एक छोटी प्रार्थना करते जाएं। If you pray like that, what will happen? अगर आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो फिर क्या होगा? If you read Psalm 23, it's full of blessing. अगर आप भजन 23 पढ़े तो ये तो पूरी आशीषों से भरा हुआ है। But to receive such a blessing, what we should do, we should have the Lord God Almighty as our shepherd. लेकिन ये सारी आशीषें पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा चरवाहा होना चाहिए। He should be our everything. वही हमारा सब कुछ होना चाहिए। He should be our leader. वो हमारा अगुवा होना He चाहिए। should be our guide. वो हमारा मार्गदर्शक होना A चाहिए fortress. और हमारा गढ़ होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Do you have such a life, my dear friends? मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपका जीवन ऐसा ही है? Are you having a close communion with the Lord? क्या आप प्रभु के साथ में करीबी संगति रख रहे हैं? Can you say, "He is my fortress"? क्या आप ये कह सकते हैं कि वो मेरा गढ़ है? In that case, you will be receiving all God's abundant blessings the whole of this year. और अगर यही बात है तो आप इस पूरे साल भर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष पाएंगे। Keep him as the head of your family. उसे अपने परिवार के सिर के रूप में, मुखिया के रूप में रखिए। Every day, gather together as one family and remember God and claim God's abundant blessings every day. हर एक दिन एक परिवार के रूप में जमा हो और परमेश्वर की हर एक बहुतायत की आशीष का दावा करते जाएं। If you do that, according to Isaiah 58:11, the Lord shall guide you continually and he will go before you and do everything for you in a beautiful way. अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चय यशायाह 58:11 के अनुसार परमेश्वर आपको लगातार लिए चलेगा और आपके आगे आगे वो बढ़ेंगे और फिर निश्चय आपके लिए बहुत महान काम करेंगे। Shall we commit our lives and pray a small prayer? आइए हम अपने जीवन को समर्पित करते हुए एक छोटी प्रार्थना करते हैं। Father, we all together as one accord give our lives into thy hands, Father. पिता, हम सब एक चित्त होकर अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। As David says, be our guide, और जैसे दाऊद ने कहा कि हमारा मार्गदर्शक हो, be our shepherd. हमारा चरवाहा हो। Go before us, Father, हे पिता, हमारे आगे आगे and चलिए do everything for us. और हमारे लिए सब कुछ कीजिए। Not only this day, the whole of this year, do everything for us in a beautiful way and guide us and lead us, oh Father. केवल आज ही नहीं प्रभु, लेकिन इस पूरे साल भर हर एक दिन आप हमारे आगे आगे चलिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। Thank you, Father. धन्यवाद करते, We give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते हैं। In Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Precious Brother Bonki, our Marak, thank you for your thank offering, which is a blessing to millions of people. बहुमूल्य भाई बॉन्की आर्मरक, आपके धन्यवादी भेंट के लिए धन्यवाद, जो लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरी है। According to Deuteronomy 28:11, the Lord will grant you abundant prosperity. व्यवस्था विवरण 28:11 के अनुसार, और जिस
जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती कर कर तेरी भलाई करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। Father, bless Brother Bonki with prosperity in the business, blessing in the family, and great joy and good health. In Jesus' name, let this year be a great blessing. पिता भाई बॉन्की को व्यापार में समृद्धि की आशीष दीजिए और परिवार में आशीष दीजिए और महान खुशियां और अच्छी सेहत मिलने पाए और यह वर्ष उनके लिए महान आशीषों का वर्ष हो, यीशु के नाम में। Amen. God bless you. यीशु बुलाता है कि नए वर्ष की आशीष सभा। We are going to pray for you that 2025 will be a year of great blessing. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि 2025 ये साल आपके लिए बड़े आशीष का साल हो। We will be sharing God's promise and God's prophetical plans for you, for the nation in 2025 in person in this meeting. और इस सभा में हम व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर का इस साल के लिए प्रतिज्ञा वचन और आपके लिए क्या वचन है परमेश्वर का, इस सारी बातों को हम व्यक्तिगत रूप में इस सभा में बताएंगे। इस मीटिंग में गवाही देने के लिए आई हूँ। ब्रदर ने पदमा नाम लेके बुलाया, मेरे लिए प्रार्थना किया है। हमारा कपड़ा का दुकान है और उस दिन दीपावली है और पहला दिन एक भी धंधा नहीं हुआ। यीशु बुलाता में प्रार्थना करिए और तुरंत पिछले साल से इस साल में दुगना मुझे आशीष मिला है, ताकि नया वर्ष 2025 को परमेश्वर के आशीष के साथ शुरू किया जा सके। वर्ष 2025 के लिए परमेश्वर की योजना क्या है, डॉक्टर पॉल दिनकरन आपके साथ साझा करेंगे और उनका परिवार नए वर्ष के आशीष सभा में संदेश देंगे और प्रार्थना करेंगे। 5 जनवरी 2025 को शाम 6 बजे आयोजित की जाएगी। स्थान होगा सेंट जॉर्ज स्कूल ग्राउंड, पूनमल्ली हाईवे, पच्चापन कॉलेज मेट्रो स्टेशन, चेन्नई। Let the sorrows of the past years go. और पिछले साल के सारे दुख चले जाएं। Let all the miracles that you need be given to you. और आपको जो भी चमत्कार चाहिए वो आपको दिया जाए। Let 2025 be a year of blessing for you as we pray together in this meeting. और जैसे कि इस सभा में हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, 2025 आपके लिए आशीष का साल हो जाए। This meeting will not be telecast live. और ये सभा जो है ये लाइव टेलीकास्ट नहीं होगी, So come in person to get blessed. इसलिए आशीष पाने के लिए आप व्यक्तिगत रूप में आए।